Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science, chapter number 1, that is Wonderful World of Science. So let's begin the chapter. The main aim of this chapter would be introduction to science. Science is everywhere, material around us, everyday science, and the role of scientist. Have a look on warm up, children. Take a minute to think about the following things. What do you think science is all about? सोचो कि साइंस किस चीज के बारे में होती है, साइंस क्या होती है. कैन यू नेम एनी साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी दैट हैज चेंज योर लाइफ? तो यहाँ आपको कोई ऐसी डिस्कवरी या इन्वेंशन के बारे में लिखना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है पूरी तरह बदल गई है. What comes to your mind when you hear the word science? आपके मन में क्या बात आती है जब आप साइंस का वर्ड सुनते हैं? Curiosity is the compass that leads to our passion. So now this is a very good line which says कि जो हमारी जितने भी हमारी आकांक्षाएं हैं वो सब कब पूरी होती हैं? जब हमारे मन में उत्सुकता बढ़ती है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं. तो साइंस हमें हेल्प करती है किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए. As humans, we are naturally curious about the world around us. अगर आप छोटे बच्चे हैं या कोई भी छोटा बच्चा है और वो स्काई में देखता है तो वो क्या देखता है रात के टाइम में कि वहाँ पे स्टार्स है, मून है, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये कैसे चमक रहे हैं, मून में लाइट कैसे है. तो ये सारे ही क्वेश्चंस हमें एक हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करते हैं. यही उत्सुकता को सॉल्व करने के लिए हम साइंस का हाथ पकड़ते हैं. साइंस हमें बताता है कि जो स्टार्स है ये हमसे बहुत 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 दूर है और ये अपनी लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए ये हमें स्काई में ट्विंकल होते दिखाई देते हैं. वहीं साइंस ने ही हमें बताया है कि जो मून है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर सन से गिरती है. As humans, we are naturally curious about the world around us. From a young age, we start exploring and asking questions. Did you have fun discovering new things in early years of school? Now that you are in middle stage, we'll keep exploring and learning our amazing world. To help with this, we have a new subject called as science. तो science ही ऐसा subject है जो हमें new discoveries की तरफ लेके जाता है, जो हमारी उत्सुकता को शांत करता है. Science is the study of natural world around us. It involves asking questions, making observation, conducting experiments, and understand how things work. Science helps us make the sense of universe from the tiniest particle to the vast galaxies. Studying science helps us understand the world better and improve our life. जैसे जैसे हम साइंस के बारे में जानते जाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानते जाते हैं, तो वो हेल्प करती है हमें हमारी उस चीज़ के बारे में जानकारी डेवलप करने में. It leads to new discoveries, helps solve problems and create new technologies. Science also helps us make informed decisions about health, safety and environment. Science is like a big never-ending jigsaw puzzle. तो एक बिल्कुल ऐसा पजल है जिसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आगे दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, दूसरा सॉल्व करते हैं तो आगे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, और इन्हीं को सॉल्व करते करते हम एक नई डिस्कवरी कर लेते हैं या नया इन्वेंशन हमारे सामने आ जाता है. जैसे कि आप देखो कि पहले के लोग जब विलेजेस में रहते थे तो उनको गर्मी लगती थी, तो वो क्या करते थे, वो एक हाथ का पंखा यूज कर लेते थे. वो भी तो साइंस ही था कि आपने जब अपना हैंड फैन मूव किया तो उससे आपको हवा मिली. उसके बाद धीरे धीरे उसी चीज को डेवलप करते करते हम फैन तक पहुंच गए, फैन से हम कूलर तक पहुंचे और कूलर से आज हमारे घर में एसीज हैं. एवरी टाइम we learn something new, we add another piece to the puzzle. And the best part that there is no limit to what we can discover. Every new piece of knowledge brings more questions and new things to learn. Sometimes we realize that a piece of puzzle was in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change how we understand the world. Science is not just about learning facts, it's the way of thinking. It encourages us to be curious, ask question. अगर हमारे को किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो हम उसके लिए क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, and seek answers through evidences and experimentation. Scientists often work together to share ideas and build on each other's discoveries.
This collaborative nature of science has led to the groundbreaking advancement in science, technology, space explorations and countless other field. अगर बच्चों कोई दवाई भी नई डेवलप हो रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलके इसको करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का दिमाग लगता है, तब जाकर हमें कोई मेडिसिन है वो मिलती है। तो साइंस में सिर्फ एक इंसान काम नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। As you continue to study science, you will develop important skills like critical thinking, problem solving and creativity. These skills will not only help you in science but in everyday life also. Science is everywhere. बच्चों हर जगह है साइंस, चाहे आप अपने लिविंग वर्ल्ड में देख लो, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, या आप सॉइल देख लो, वाटर देख लो, सब जगह पर, हर जगह पर साइंस जो है वो अपनी छाप छोड़ती है। From tiny grains of sand to huge mountains, from a single leaf to the entire forest. Science explains that stars shine because of the reaction happening between in them. आपको पता है सन जो है इतना ब्राइट स्टार है, सन इज अ स्टार, वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में लाइट एमिट करता है, इतने ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन होता रहता है बच्चों, हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से इतने लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। Plants respond to light and temperature which help them know when to bloom. तो प्लांट्स भी हैं, अगर आप देखो जब एक छोटी सी कली होती है उसके बाद जब सनलाइट मिलती है, प्रॉपर पानी मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, तो एक कली फूल में खिल जाती है ना, द बड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर। तो वो कब होगा, जब उसको राइट अमाउंट की कंडीशंस मिलेंगी, सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा और राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलेगा। साइंस हेल्प अस टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व मिस्ट्रीज। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जिसके आंसर्स हमें साइंस के थ्रू ही मिल पाए हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ। सो चिल्ड्रन, सोलर सिस्टम में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर आपको प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलेंगे। There is huge variety of life on earth, like plants and animals that have learned to live and grow in different parts of the world. You might have noticed that a seed grows into a plant. तो अब अगर आप देखो कि अगर आपके पास एक बीज है, बीज से पूरा का पूरा ट्री बन सकता है। कब बनेगा, जब बीज को हम सॉइल में सो कर देंगे, उसको राइट अमाउंट की कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, उसको पानी देंगे, टेम्परेचर उसका अच्छा होगा, तब जाकर एक सीड जो है इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ बेबी प्लांट, और फिर उस बेबी प्लांट से हमारा इतने बड़े बड़े टॉल ट्रीज तक डेवलप हो जाते हैं। आप अपना एग्जाम्पल देख लो, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपको यू वर रिक्वायरिंग योर मदर्स हेल्प, आपको सब काम करने के लिए आपकी मम्मी की हेल्प चाहिए होती थी। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए, यू बिकम अ टोडलर, उसके बाद आप स्कूल जाने लगे और आज आप इतने बड़े हो गए हो कि आप अपने सब काम खुद कर सकते हो। Or a baby changes into an adult, but how do these plants and animals grow? All plants and animals need food to grow. तो फूड हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ हमें किससे पता चली थी, साइंस के थ्रू ही पता चली थी कि जो फूड हम खाते हैं वही फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ लेकर आता है। Food gives them energy. Sunlight is used by plants to make food. So it is the ultimate source of energy. In India, we have different kinds of food from different regions. Now see an activity, children, plant growth experiment to observe how different conditions affect the growth of plants. अब सभी plants जो हैं grow कैसे करेंगे different conditions में, वो हम इस activity में देखेंगे। तो इसके लिए हमें material क्या required है, small pots or containers, potting soil, seeds जैसे कि beans हो गई, sunflower हो गई या peas की, water, ruler, notebook for observation and labels. Now what is the procedure? Fill each pot with potting soil, leaving some space at the top. Plant a few seeds in each pot following the recommended planting depth of the seed packet. If using different conditions like sunlight versus shade, different amount of water, label each pot accordingly. तो आप एक pot को sunlight में रखोगे, एक pot को shade में रखोगे, एक pot को ज़्यादा पानी दोगे, एक pot को कम पानी दोगे, तो इन सबको आप label करके रखोगे. Water each pot gently to moisten the soil.
create conditions, place pot in direct sunlight and others in shaded area to test light conditions. Alternatively, water some pots with water, then others to test the effect of moisture. तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? Check the pots daily for signs of growth. Use a ruler to measure the height of plant at regular interval and record your finding in your notebooks. After a few weeks, compare the growth of plants and under different conditions. Discuss which condition produce the best growth and why. तो यहाँ पर आप एनालिसिस करोगे इस चीज़ का कि कौन से पॉट में ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई है, शेडेड वाले में हुई है या सनलाइट वाले में जिसमें आपने ज़्यादा पानी डाला है उसमें ग्रोथ अच्छी आई है या कम पानी वाले में ग्रोथ अच्छी आई है. Record your daily observation of plant growth, including height measurement and any noticeable difference in appearance between plants in different conditions. So what will be the conclusion? This experiment helps us to understand the factors that affect plant growth, such as light, water and soil type. It teaches you about the scientific method, making observation, forming hypotheses, conducting experiments and analyzing data. Now children, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को नहीं भूल सकते. हमारे लिए वाटर कितना ज़रूरी है ये आप सब जानते हैं. वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है. Water is one of the most valuable resource required by all living beings. The process of moving water above and below the earth surface is called as water cycle. तो अगर आप देखो तो वाटर क्या है? वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है ना. अब ऐसा क्यों है कि वाटर ख़त्म नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो अर्थ का 70% जो अर्थ है इट इज़ कवर्ड विद वाटर और ये वाटर रेगुलरली रिप्लेनिश किया जाता है ड्यू टू द वाटर साइकिल. वाटर इवेपोरेट होता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ ठंडा होता है, क्लाउड्स बनते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू और जब ये क्लाउड्स फिल हो जाते हैं वाटर से पूरी तरह से तो बारिश होती है और इस बारिश से वापस से पानी जो है अर्थ पे रिटर्न कर दिया जाता है. तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है जिसकी वजह से वाटर जो है हमारे अर्थ से कभी ख़त्म नहीं हो सकता. थ्रू इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स and oceans turn into water vapor and rises into the atmosphere. This vapor cools and forms clouds through condensation. When the clouds become heavy, the water falls back to the earth in the form of rain, snow or hail. Some of this water collects in rivers and lakes while others seeps into the ground to become groundwater. This cycle repeats endlessly, making sure there is continuous supply of water for all living organisms. Water plays a big role in supporting our community. तो चिल्ड्रन अगर आप ये नोटिस करोगे तो वाटर हमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलता है. कैसे? सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आइस और वहीं वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है एज अ वाटर एंड गैशियस फॉर्म में वाटर हमें स्टीम की फॉर्म में या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है. Have you noticed that when you cool water it freezes and becomes ice? And when we heat it, it boils and becomes steam. तो दोनों ही कैसे प्रोसेसेस है? फिजिकल चेंजेस है. क्या हो रहा है? अगर आपने वाटर को फ्रीज कर दिया तो वो आइस बन जाएगा और वहीं अगर आपने वाटर को हीट कर दिया तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा. Do you like to drink cold water in summers or take a bath with hot warm water in winters? How do we perceive hot or cold? Whether it is water of or our own body, we have a fewer. It can be important to figure out how hot some things are. तो हम किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है? बाय सिंपली टचिंग इट. टच से भी हम किसी चीज़ को बता पाते हैं कि मम्मी ने हमें दूध कैसा दिया है, गरम दिया है या हमें कोल्ड कॉफ़ी दी है. मटीरियल अराउंड अस. चिल्ड्रन जैसे आप अपने आसपास देखते हो तो आपको बहुत सारे टाइप के मटीरियल्स मिलते हैं लाइक पेपर है, पेन है, यू हैव अ नोटबुक, योर टेबल, चेयर, कबर्ड. So many things are present in front of you. अब आप बताओ कि क्या ये सारी चीज़ें एक ही तरीके के मटेरियल से बनी हैं? क्या इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है? नहीं, ये सब अलग अलग मटेरियल की है. अगर आप देखो कि अगर आप जो ज्वेलरी पहनते हो वो गोल्ड की बनी हुई है. आपके घर में जो बाइसिकल है जिसको आप राइड करते हो रोज, वो किसकी बनी हुई है? वो आयरन की बनी हुई है. कुछ चीज़ें मेटल्स में हम क्लासिफाई करते हैं, कुछ चीज़ों को हम नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि आप ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हो, तो ये नॉन मेटल्स है.
नॉन मेटल से बनी हुई हैं। डिफरेंट आइटम्स आर मेड from different materials like metal, plastic, rubber and fiber. Knowing the properties of material help us to sort and recycle them. तो हम इसी से जब हमें पता है कि कोई चीज़ की प्रॉपर्टी कैसी है, उसी हिसाब से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और उसको दोबारा से रिसाइकिल करके यूज में ला सकते हैं. Example, recycling involves separating papers, plastics and metal so that they can be used again. If we know that iron is attracted by magnet, we can separate it easily from the material by using a magnet. अगर आपको पता है जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम पेपर की बात करें, सैंड की बात करें तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो इसके थ्रू हम इजीली आयरन को सेपरेट कर सकते हैं. Suddenly a question come in our mind, which material are they made of? They are made up of same material या फिर अलग अलग material के बने हैं. Do these materials have same properties or different properties? Thousands of questions come in mind because this is curiosity to know the things. We will have the utmost unending list of questions about everything on earth. You have learned about the structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin of peanut seed. You will learn a lot about science book. Having conducted a simple experiment at home like growing beans in different conditions and follow the process. Now see another activity children, magnetism. ये देखने के लिए कि जो जो substance हमारे पास हैं क्या उनमें magnetic properties है या नहीं. To investigate which material are attracted to a magnet and learn about the property of magnet. तो इसके लिए हमें चाहिए एक बार मैग्नेट या फिर रेफ्रिजरेटर की मैग्नेट. A variety of objects like paper clips, nail, coin, piece of wood, plastic spoon, rubber band, notebook for recording observation. Procedure क्या है बच्चों इसका? हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट मटेरियल से जो बनी हुई हैं और सभी को मैग्नेट के पास लेकर आएंगे. तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पेपर क्लिप्स है, ये जो है ये इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट से. तो इससे हमें बाकी चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आयरन जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल है. वहीं अगर आप दो मैग्नेट को भी इकट्ठे लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे कि अगर उनके पोल्स अलग अलग हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर उनके पोल्स सेम हैं तो दे विल शो रिपल्शन. Conclusion. This activity help us understand the property of magnet, how they interact with different materials. You will learn that objects made of certain metals like iron, nickel, cobalt are magnetic, while non-metallic objects like wood, plastic are not. Now, example of scientific method. Children, जैसे कि अगर हम बात करें, आप लिख रहे हैं अपने पेन से और सडनली आपका पेन स्टॉप कर जाए तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? अरे पेन की रिफिल खत्म हो गई होगी. तो आप क्या करोगे? आप अपने पेन को ओपन करोगे और देखोगे कि क्या उसकी रिफिल सच्ची में खत्म हुई है. अगर खत्म हुई है तो सही है, आपका गैस जो है जो आपने ऑब्जर्वेशन करी वो बिल्कुल ट्रू निकली. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर इंक होती है एंड देन ऑल्सो द पेन स्टॉप्स वर्किंग. तो आप क्या गैस करोगे? या तो इसकी इंक सूख गई होगी या फिर इसके अंदर जो इंक है वो इंफीरियर क्वालिटी की होगी, है ना. तो बाय दिस यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट. आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया. आपने जब पेन को खोल के देखा कि उसकी रिफिल में इंक है या नहीं है तो यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और उसी से आपने आंसर को निकाला. ऑब्जर्वेशन. द पेन स्टॉप्स राइटिंग. तो हमारे मन में क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाई डिड इट स्टॉप? एक्सपेरिमेंट. चेक द इंक रिफिल. और इससे एनालिसिस क्या हुआ? इफ एम्प्टी द गेस इज करेक्ट, इफ नॉट मेक अनदर गेस. कंक्लूजन. If the ink dried up, you might check if pen was left uncapped. तो हम क्या कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि हो सकता है पेन खुला रह गया होगा, इसी वजह से उसकी इंक सूख गई है, और the ink is of poor quality. According to the above activity, we find that science is not only memorizing facts and figures or doing experiment, but following a step-by-step process that help us find answers to our question. We should follow some steps. तो चिल्ड्रन ऐसे ही करके धीरे धीरे आप पहले क्वेश्चन पुट अप करते हो, फिर उसके लिए आप ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, जिसकी वजह से आपको आंसर जो है वो मिल जाता है. तो साइंस इज नथिंग अबाउट मगिंग अप. इसमें हमें कुछ मग अप नहीं करना होता. जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, वही हमें इसमें बताना होता है.
First, we observe things that we find interesting, are questions stuck in our mind, then we try to find the possible answer to that question, we test our guess through experiment, at last we find some valuable result. Our curiosity comes to final result. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पुट अप करके, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके अपनी उत्सुकता को शांत करते हैं. Scientists also follow the same method that they call scientific methods. By this method, they solve problems or discover new things. Have you noticed how Dal spilled out the cooker? दाल कैसे बाहर निकल आई कुकर से? Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. तो अगर आप साइकिल वाले के पास जाते हो और आपका टायर जो है वो फ्लैट हो जाता है, तो सबसे पहले वो रीज़न ढूंढता है कि आपका टायर जो है वो फ्लैट क्यों हुआ, क्या उसमें कोई कील चुभ गया, क्या उसमें से एयर बाहर निकल गई. Find out why a tire is flat from not working properly. When we try to ask questions and find answers in a way, we think like a scientist. Scientists of biology, chemistry, physics, etc. think a lot. Some examples are as follows. Now children, biology. Biology क्या subject होता है? Biology होती है study of living world, जिसमें आप जितने भी living organisms हैं उसकी study करते हैं, including plants, animals, microorganisms. वो किसके बने हैं, जैसे कि cells हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन कैसे होता है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए कैसा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट ग्रोज. प्लांट कैसे ग्रो करता है, एक बच्चा छोटे से एडल्ट कैसे बनता है, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के आसपास में, अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, हाउ डिजीजेस अफेक्ट ह्यूमंस. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं. देन वी हैव केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स चेंजेस. वो हमें बताती है कि इसके अंदर हम कौन सा एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड्स है, मिक्सचर क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हमें केमिस्ट्री के थ्रू मिलती है. फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एनर्जी कैसी है, एंड व्हाट आर देयर इंटरैक्शन. एनर्जी कितने टाइप की होती है और वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं. अगर वाटर डैम में रुका हुआ है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, और अगर पानी तेजी से चल रहा है डैम में तो उसमें कौन सी एनर्जी है, ये सारी जानकारी हमें फिजिक्स के द्वारा मिलती है. इट हेल्प अस टू स्टडी फोर्सेस, मोशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर. इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स अ लाइट बल्ब. हम फिजिक्स के द्वारा ही जान पाए हैं कि हम अर्थ पे खड़े कैसे रह सकते हैं, जबकि अगर हम मून पे जाते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती. यही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, जो हम खड़े रह सकते हैं, हम चेयर पे बैठ सकते हैं. ये काम आप मून पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है. अर्थ साइंस deals with the earth and its processes. It covers topics like geology, meteorology, oceanology, astronomy. It helps us in learning about weather pattern, earthquakes और water cycle. तो आज अर्थ साइंस की वजह से ही हम पहले से ही जान पाते हैं कि कहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है और वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या फिर सुनामी कहाँ आने वाली है और उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम वहाँ से लोगों को वेकेंट कर सकते हैं. There are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific methods. The following experiments can satisfy our curiosity. Everyday sciences, cooking. आप देखो, आप घर में कुक करते हो खाना, आप रॉ लेकर आते हो वेजिटेबल्स, उसमें आप स्पाइसेस मिक्स करते हो, ऑयल मिक्स करते हो, उसको हीट प्रोवाइड करते हो. तो क्या होता है बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो कुक हो जाता है. आप अपना केक बेक करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, आप यीस्ट यूज़ करते हो. तो यीस्ट क्या करती है, यीस्ट जो है वो रिस्पायर करती है एनारोबिकली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके डो को फुलाने में हेल्प करता है, आपका डो राइज करने में हेल्प करता है. सो ऑल दिस आर डिपेंडेंट ऑन साइंस. सभी हमें साइंस की वजह से ही पता चला है. For instance, when you bake a cake, the heat causes the baking powder to release carbon dioxide gas, which makes cake rise. Understanding these processes allow us to improve flavors, textures and cooking technologies. तो आप आजकल
आप अपना खाना माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो। पहले लोग चूल्हों पे बनाते थे, आजकल क्या है हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, अवन्स हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये सब साइंस की ही देन है। Performance in sports. Science has led to the development of more advanced equipment such as lightweight running shoes or aerodynamic cycles, which improves athletics performance. Science also informs training methods, helping athletes optimize their diet. तो साइंस से ही हमें पता चलता है हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए ताकि हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सके। And recovery strategies to enhance their overall fitness and results. Safety tips. Always handle materials with care. Children, जो भी साइंस में आप लैब में जब भी काम कर रहे हो, किसी भी मटेरियल से काम कर रहे हो, बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, especially while using chemicals, sharp objects or electrical devices in experiments. Follow instructions precisely to avoid accidents or unexpected रिजल्ट्स। तो अपने जितने भी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। इफ यू आर अनश्योर अबाउट समथिंग, आस्क एन एडल्ट और योर टीचर फॉर हेल्प, स्पेशली व्हेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स पोटेंशियली हजार्डस मटीरियल। द रोल ऑफ साइंटिस्ट। तो चिल्ड्रन, जो लोग साइंस के फील्ड में काम करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? साइंटिस्ट बुलाते हैं। They are dedicated individuals who explore the natural world and seek answer to the questions about how a thing works. They work in many different fields like biology to physics and conduct research in laboratories, outdoor environment और specialized facilities. तो अगर आप ये देखो कि जो कोविड हुआ था, अभी कोविड की वैक्सीन्स जब डेवलप की गई थी तो वो कैसे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में की गई थी, साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, और कितना मतलब हमारा वहाँ पे कैसे कैसे लेबोरेटरीज में सेटअप था कि हमने कोरोना वायरस को के वीक स्टेन लेके उसी से उसकी वैक्सीनेशन तैयार की थी। साइंस इज रेयरली डन अलोन। तो ये काम अकेले नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है इस प्रोग्राम में। Scientists across the world work together in a team. So if you cannot find answer yourself, ask your classmates, friends, parents and teachers to help you out. It is always more fun to discover things together. Science is all about joyful explorations. Enjoy your scientific journey, keep exploring, never stop wondering about amazing mysteries of the universe and asking questions. क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो हम बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कैसे करेंगे, बड़े बड़े इन्वेंशंस कैसे करेंगे। अगर किसी ने सोचा होगा कि भाई हमें मार्स पे जाना है, तो सबसे पहले तो सोच आई, उसके बाद उस फील्ड में हमने काम किया और आज इंडिया जो है वो मार्स तक पहुंच गया है, मून तक हम पहुंच गए हैं। तो ये सब कब से शुरू हुआ? किसी ना किसी की सोच से ही डेवलप हुआ है। As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions. Now have a look on activity mixing liquid experiment to observe the property of different liquids and how they interact when mixed. तो इसके लिए हमें चाहिए क्लियर कप्स चाहिए, वाटर, ऑयल, फूड कलरिंग, सिरप, liquid dish wash, small spoon or stirring stick, notebook for observation. Procedure: prepare the liquid, fill 1 cup with water, 1 with oil, 3rd with syrup or honey, optional. Add food coloring to water for better visibility. अब आप क्या करो, ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो। तो आप क्या देखोगे कि ऑयल बीइंग लाइटर, ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। यूज अ स्पून टू स्टीयर द मिक्सचर, लेकिन फिर भी क्या होगा, ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर्स जो है ये हमें दिखाई देंगी। मिक्स वाटर एंड सिरप, अगर आप शुगर सिरप लो या हनी लो और वाटर में उसको मिक्स करो तो थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि वो दोनों चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। वाटर एंड डिश सोप, अगर आप डिश सोप को वाटर में मिक्स करते हो तो यू आर एबल टू सी द बबल्स दिखाई देते हैं ना, हमें झाग बन जाती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, राइट डाउन द व्हाट यू सी विद ईच मिक्सचर। How do the liquids interact? Do they mix or separate? What happens when you stir them? Discuss the result. Talk about why some liquids mix while others do not. Discuss concepts like density, viscosity, and immiscibility. Observation. Record your observation for each mixture, noticing how the liquids interact, whether they mix or separate, or any change in appearance when stirred. Conclusion: this activity illustrates the properties of different liquids, how they behave when mixed.
It helps you to understand the concepts like density, why oil floats on water, solubility कि कोई चीज़ कैसे पानी में dissolve हो जाती है, कोई चीज़ पानी में dissolve क्यों नहीं होती, and science behind emulsions, mixing oil and water with the help of soap. Now have a look on Wonderbox, children. Janaki Ammal was born on 4th November 1897. She is known for her research on plant breeding and cytogenetics, specifically in the disciple of sugarcane and brinjal, जिसको हम eggplant भी बोलते हैं. Now have a look on keywords and explanation. Science, scientific way of exploring the world through observation and experimentation. Earth, the only planet that supports life. Scientific method, a step-by-step process to find reliable answers to questions. Biology, the study of living organisms. Now the review zone. First question says, tick the correct option. What drives humans to explore and ask questions from a young age? तो ये हमें derive करती है curiosity. What is the main source of energy for plants? It is the sunlight. Water is found in 3 states. Fill in the blanks. Humans are naturally dash about the world around them. Curious, C-U-R-I-O-U-S. यहाँ पे आप curious लिखेंगे. Dash is the study of natural world around us. तो what is it called? Natural world की study को हम क्या बोलेंगे? Science. Science is like a big never-ending jigsaw. Water can be solid as ice, liquid as water, and gas as steam. Dash deals with the properties of matter and energy and their interaction. This is called as physics. State whether the following statements are true or false. Aluminium is attracted by magnet. No, this is false. Scientists work in lab, field studies and research center. Yes, this is true. We drink hot water in summers. This is false. Physicists study living organism. No, this is false. Curiosity is very important in science. Yes, this is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.